God wants you to see wonders. That's why He allows you to go through the worst challenges, tribulations, troubles, so that He can do wonders for you, raise you up, and the people around you will say, God loves you. My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God wants to do wonders for you. परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए अद्भुत कार्य करे। His name is wonderful. उसका नाम ही अद्भुत है। He does wonders which cannot be understood or fathomed. वो ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते हैं। And the number of wonders that He does for us is beyond counting. और जो आश्चर्य कर्म वो हमारे लिए करता है वो असंख्य है। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। The Lord promises, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, amongst the people whom you live, जिन लोगों के मध्य में तू रहता है, I will do awesome wonders for you. मैं उनके बीच ही तेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा। Before the eyes of the people who are around you, I will do awesome wonders for you. तेरे आसपास रहने वाले लोगों की आंखों के सामने मैं तेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा। Exodus 34:10. निर्गमन 34:10। I'll make a covenant with you that I will do wonders for you. मैं एक वाचा बांधूंगा कि मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य करूंगा। And the Lord is a covenant keeping और God. प्रभु वाचा का पालन करने वाला ईश्वर है। God wants you to see wonders. परमेश्वर चाहता है कि आप चमत्कारों को देखें। That's why He allows you to go through the worst challenges, tribulations, troubles, so that He can do wonders for you, raise you up, and the people around you will say, God loves you. इसलिए परमेश्वर आपको सबसे बुरी परेशानियों से गुजरने देते हैं। वो आपके लिए चमत्कार को करे और आपको ऊपर उठाए और लोग के कहे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। When tribulations come, जब हमारे ऊपर सताव आते हैं, we are not able to understand it. हम उसे कई बार समझते नहीं। We say, why Lord? हम कहते हैं प्रभु ऐसा क्यों? But that is the way for God to do wonders for you and bring honor and prosperity to you, so that the world will say, God is alive and God is with him. God is with him. लेकिन यही तो तरीका है परमेश्वर के लिए कि वो आपके लिए अद्भुत चमत्कार लाए और संसार जो उसे देख करके कहे कि ये तो अद्भुत है, परमेश्वर इसके साथ है। God is going to lift you up above all your tribulations and wilderness experience. आपके जितने भी परेशानी के अनुभव और जंगल के अनुभव से परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। You are not forgotten. आपको भुलाया नहीं गया है। Before the very eyes of the people about whom you are afraid or ashamed, God is going to lift you up by doing wonders. जिन लोगों के आंखों के सामने आप डरते हैं या आपको शर्मिंदगी होती है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको अद्भुत कार्य करते हुए उठाएंगे। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Joseph from Chennai shared this. चेन्नई से जोसेफ ने अपनी गवाही यूं दी He was an average student. कि वो एक औसत छात्र ही थे। He got low marks in his 11th standard उनकी 11वीं में बहुत ही कम अंक आए and also in the 12th. और साथ ही 12वीं में The भी। final examinations came. और जब अंतिम परीक्षा का समय आया, The school management called his parents and said, take him away. शाला प्रबंधन ने उसके माता पिता को बुला करके कहा कि इसे तुम घर ले जाओ, He will fail. ये फेल हो जाएगा। At that time, he said, he came to the Jesus Call students prayer meet. और उसने कहा कि उसी समय वो जीसस कॉल्स के स्टूडेंट प्रेयर मीट में आए थे। And that day, as I was preaching, I said, God will give you the questions and the answers prophetically, and you will shine in your exam. God will do a wonder. और उस दिन जब मैं प्रचार कर रहा था तो परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से और आप अपनी परीक्षा में अद्भुत रूप से अच्छा करेंगे और आप रोशन होंगे। And during the biology exam, और बायोलॉजी की परीक्षा के समय he called the prayer tower before going to the exam. परीक्षा में जाने के पहले उसने प्रार्थना भवन में कॉल He किया। had studied certain questions. उसने कुछ प्रश्नों की पढ़ाई की थी And amazingly, only those questions came. और अद्भुत तरीके से केवल वही प्रश्न पूछे And he गए got 99% marks. और उसे 99% अंक मिले। 99%. 99% अंक। Person who was getting low marks in biology in all the pre-exams. जिसको पहले 3 परीक्षाओं में बायोलॉजी में सबसे कम अंक मिले थे। After that, when he joined college, उसके बाद जब वो कॉलेज गए, he became sick वो बीमार हो गया and he had 25 arrears. और उसको 25 एरियर्स थे। He thought his life was finished. उसे लगा कि उसका जीवन तो खत्म हो गया। Again, he came to the prayer tower. फिर से वो प्रार्थना भवन में आया। Prayer intercessors prayed
with great zeal for him. प्रार्थना योद्धाओं ने बड़े ही बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना की। And his grandmother had enrolled him in the Young Partners Plan. उसकी दादी ने उसको युवा सहभागी योजना में एनरोल किया था। Every day prayers were offered for him in the prayer tower. और प्रतिदिन उसके लिए प्रार्थना भवन में प्रार्थना होती रही। And also he would get emails from me encouraging him with verses. और उसे मेरी ओर से ईमेल मिलते थे जो उसके वचनों के द्वारा से उसे ढाढ़स देते A थे। miracle happened. और एक चमत्कार हुआ। He cleared all the 25 arrears in one attempt. एक ही बार में उसने वो सारे 25 एरियर्स जो थे पूरे कर And लिए। he got a job in Germany with a high salary. और बड़ी ऊंची तनख्वाह पर उसे जर्मनी में एक नौकरी मिल गई। He was a total failure, a flop. वो तो पूरी तरह से एक असफल व्यक्ति था, But Jesus lifted him up. लेकिन यीशु ने उसे ऊंचा उठाया। He's a partner with वो Jesus. यीशु के साथ एक सहभागी है। Jesus will do it for you. यीशु आपके लिए भी यही करेंगे। Father, पिताजी, your son, your daughter may say, I have become a zero today. चाहे आज आपके बेटे बेटी ये कहते हो कि मैं शून्य हूँ, Empower them with thy Holy Spirit, अपनी पवित्र आत्मा से आप उन्हें बलवंत करें प्रभु जी। and with the prophetic guidance, Lord, lead them to study, lead them in their और job. भविष्यवक्ता अगुवाई के द्वारा से आप पढ़ाई में और उनकी नौकरी में उनकी अगुवाई करें। Let them get out of all their वे losses उनके हर एक हानियों से बाहर निकल जाएं and prosper. और उन्नत होते जाएं, Be placed in high ऊंचे places पदों पर स्थापित हों, by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो, Let them be secure and prosperous in और वे Jesus. यीशु में सुरक्षित और संपन्न बने रहे। Let this day bring forth this wonder for them. उन्हें दे कि आज का दिन उनके लिए यही आश्चर्यक्रम लेकर के आए। Those who need a visa, give them the visa. जिन्हें एक वीसा चाहिए उन्हें वीसा दे, Those who need a high position in the job, give it to them. जिन्हें नौकरी में ऊंचा पद चाहिए आप उन्हें दे दें प्रभु। Those who need a child, give them a child in their womb. जिन्हें संतान चाहिए उनके गर्भ में एक संतान दे दें, Bless them. उन्हें आशीष दें। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friend, मेरे मित्र, call the prayer tower anytime, 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें, ये पूरी तरह मुफ्त है। And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्दा प्रेयर सेंटर जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए, Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।